مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا ہے، ہمیں بیوقوفوں کی زندگی نہیں گزارنی ہے نا. دنیا اب ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. آپ ٹریول کریں، پڑھیں، گھومیں. ابھی آپ اپنے لیڈروں کو ہی دیکھ لیں نا، یعنی عمران خان کو ہی لے لیں. یعنی یہ اور بے نظیر دونوں یو کے میں ساتھ ایک ہی شہر میں پڑھتے تھے، جو ابھی ریسنٹ ویڈیو آئی. تو ہمارا بچہ اگر آکسفورڈ جا رہا ہے پڑھنے تو بہت اچھی بات ہے، جائے. 7 لاکھ کیا 70 لاکھ لوگ باہر جائیں پڑھنے، بھائی میری تو دعا ہے. پھر وہ دنیا بھر میں امپلائبل ہو جاتے ہیں، ان کی کہیں پہ بھی ان کو جابس مل جاتی ہیں اگر وہ جاب کر رہے ہیں. باہر بہت گائیڈس ہیں مگر وہاں لوگ ہی کم ہیں. تو ہمارے لوگ اگر باہر جا رہے ہیں تو یہ آئی تھنک یہ بہت اچھا ہے، اور ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ ایسا دیکھیں، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ مجھے بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، وہ ہے نوجوانوں کو پیغام. ابھی ہمارے ریسرچ بھی ایک پبلش ہوئی کہ ہمارے لاکھوں لوگ نوجوان ملک سے باہر چلے گئے، اور اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا باہر جانا جو ہے یہ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے. دیکھیں ہماری آبادی دیکھیں، آپ آبادی دیکھیں. آبادی 25-30 کروڑ کا ملک ہے ہمارا، 7th لارجسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن. دیکھیں دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں دنیا کو لیڈ کرنا ہے، ہمیں دنیا کو سکھانا ہے. ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. ہم نے دیکھیں ہم کہیں بھی جائیں گے رہیں گے تو پاکستانی. اس میں تو کوئی آپ چھوڑ دیں کہ آپ امریکہ، صحیح آگے جا کے نسلوں میں آپ چینج ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں میں بھی دبئی گیا، I met people جو کہ تھرڈ جنریشن کے پاکستانی ہیں. ان کے دادا آئے تھے کینیا یا یو کے یا کہیں، تو ابھی بھی وہ پاکستانی ہے. وہ تیسری جنریشن میں آگے ہیں مگر وہ ابھی بھی پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کا، ہمارے ساتھیوں کا، ہمارے نوجوانوں کا پورے ملک میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ایک اپرچونٹی ہے. دیکھیں یہ وائی فائی کا دور ہے. یہ جو دنیا ہے 2022-2023 یہ وائی فائی کی دنیا ہے. تو وائی فائی تو ہر جگہ ہے نا بھائی. آپ امریکہ میں بیٹھ کے بھی آپ وائی فائی کا بزنس کر سکتے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. آج کل ویسے ہی ریموٹ ورکنگ ہو رہی ہے. گورنمنٹ نے تو سرکاری ورکروں کو بھی یہ ریکویسٹ کر دی ہے کہ کچھ آپ لوگوں کو گھر سے کام کرائیں. تو یہ جو پرفارمنس مینجمنٹ ہے یہ اب آپ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. تو جو وائی فائی ہے اس پہ فوکس رکھیں، اور وائی فائی سے ارن کرنے کے لیے آپ کو پاکستان میں موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا گھومیں، آپ ہر جگہ جائیں اور اپنا کام کریں. کہیں بھی رہ کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا گھومنا اس وقت بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم ایز اے کنٹری بہت پیچھے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم ایز اے کنٹری بالکل بہت پیچھے ہیں، دبئی سے بہت پیچھے ہیں. یعنی آپ یو کے امریکہ کو تو چھوڑیں، آپ چائنا کو بھی چھوڑیں، آپ دبئی سے پیچھے ہیں. میں آپ کو دبئی سے، ہم لوگ یو اے ای سے کتنا پیچھے ہیں. ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی ہیں، استاد ہیں، بزرگ ہیں، عتیق الرحمان صاحب، بہت پرانے ہمارے. عتیق الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک شارجہ کے ڈینٹل میڈیکل کالج کے ہیڈ ہیں، آئی تھنک ون آف دا بورڈ ممبر ان مارکیٹنگ. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یو اے میں جو ٹاپ سرٹیفکیشن ہے کوالٹی ہیلتھ کیئر کی، آئی تھنک JCI اس کو کہتے ہیں، وہ اراؤنڈ 93 یا 94 ہاسپٹل ایسے ہیں یو اے میں جو JCI سرٹیفائیڈ ہے. کوالٹی سرٹیفکیٹ، یعنی اتنی اچھی انٹرنیشنل کوالٹی کے ہاسپٹل ہیں یو اے میں. اور پاکستان میں کتنے؟ 3. تو مقصد یہ کہ وہ ہیلتھ میں اتنے آگے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں میں ہم سے بہت آگے ہیں. تو اگر ہمارا نوجوان باہر جاتا ہے تو وہ واپس آئے گا، کوئی بات نہیں. نہ بھی آئے تو پاکستانی رہے گا، آپ کو ڈالر بھیجے گا اور جہاں جائے گا وہاں لیڈ کرے گا. بھائی آپ کے پاس 25-30 کروڑ لوگ ہیں، ان کی فکر کرو نا. جو چلے گئے ان کو کیوں رو رہے؟ بھائی ابھی بھی اتنے لوگ ہیں کہ ہم کیا کریں، ان کا یہ نہیں سمجھ آ رہا ہمیں. دیکھیں نا، یعنی 25-30 کروڑ لوگوں کا ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جو 7 لاکھ چلے گئے ان کے لیے ہم پریشان ہیں. جو یہاں 25 کروڑ پڑے ہوئے ان کے لیے کیا کر لیا آپ نے؟ بھائی یہ مجھے بتائیں. ٹی وی کھول کے دیں گے، پورے دن سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. بھائی عوام کے لیے کیا کر رہے ہو؟ 25 کروڑ لوگ ذمہ داری لے کے بیٹھے ہوئے ہو پیچھے پڑے ہوئے ملک کے، ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟
तो जो लोग यहाँ पड़े हैं उन पे हमारी निगाह नहीं है, जो 7 लाख चले गए उनके लिए रो रहे हैं। भाई चलो वो चले गए, वहां डेवलप होंगे, अपनी फैमिली को कुछ नान नफ्ता भेजेंगे, पैसे भेजेंगे, कुछ काम करेंगे, तो ये तशवीशनाक बात नहीं है भाई, ये तो खुशी की बात है। मैं तो कहूँ जरूर जाएं, देखें दुनिया किधर जा रही है। मुसलमान बेवकूफ नहीं होता है, हमें बेवकूफों की जिंदगी नहीं गुजारनी है ना। दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आप ट्रैवल करें, पढ़ें, घूमें। अभी आप अपने लीडरों को ही देख लें ना, यानी इमरान खान को ही ले लें, यानी ये और बेनजीर दोनों यूके में साथ एक ही शहर में पढ़ते थे, जो अभी रिसेंट वीडियो आई। तो हमारा बच्चा अगर ऑक्सफोर्ड जा रहा है पढ़ने तो बहुत अच्छी बात है, जाए। 7 लाख क्या 70 लाख लोग बाहर जाएं पढ़ने, भाई मेरी तो दुआ है कि वो जाएं और हम दुनिया को लीड करें। यानी मैं बहुत एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊं। मैं आई थिंक 2007 में या 8 में मैं मिस्र में था, तो वहां एक साइकेट्री की कॉन्फ्रेंस में जाना हुआ। अच्छा, तो वहां पे एक टॉपिक था जो मेरे लिहाज से बहुत ही एडवांस था, यानी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर था, वो एनाल्जेसिक के रोल के ऊपर, एंटी इन्फ्लेमेटरी का रोल इन कैंसर। अच्छा, मैं चला गया, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, मैं जाके उसमें बैठ गया। उसमें तो मैंने ये देखा कि उसमें गेट तक जो है ना बच्चे बैठे हुए थे, उसमें जगह ही नहीं थी उस रूम में। मैं जरा जल्दी चला गया तो मुझे मिल गई, लेकिन जगह नहीं थी बैठने की। तो उसमें जो ज्यादातर बच्चे थे वो चाइनीज थे, और कॉन्फ्रेंस जो थी मिस्र में थी, कायरो। तो मकसद ये कि जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, दुनिया नहीं घूमेंगे, बाहर का एक्सपोजर नहीं लेंगे, आपको तो पता ही नहीं, आप तो कुएं के मेंढक बने रहेंगे भाई। तो 7 लाख नहीं, 70 लाख लोगों को, 7 करोड़ लोगों को बाहर जाना चाहिए। और हाँ, ये बात है कि शायद मेरा भी पहले ये इतना एक्सपोजर ना होने की वजह से कम इल्मी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि दुनिया एक छोटा सा गांव है और हमें पूरे गांव को देखना चाहिए, जाना चाहिए, और हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें ट्रैवल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लोगों की सकाफत देखनी चाहिए, अल्लाह की नेमतें हमें देखनी चाहिए। तो ये जो नौजवान हमारे जा रहे हैं बाहर, भाई जा सको जाओ, देखो, सीखोगे, इंशाल्लाह एक्सपोजर बढ़ेगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इससे आमदनी में भी इजाफा होता है जब हम ट्रैवल करते हैं। तो यस, ये आपके रेवेन्यू में भी, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं। आप देखें ना, कुएं से मेंढक बाहर आता है तो उसको नए आइडियाज तो मिलते हैं ना। तो जब हम भी बाहर जाएंगे, वी विल डेफिनेटली बी हैविंग मोर एंड मोर आइडियाज, एंड ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आएंगी। तो हमें बाहर जाने की मौके तलाश करने चाहिए। और ट्रैवल, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जितने जो लीडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं मुल्क के, हमारे कासिम अली शाह साहब, जावेद चौधरी साहब, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो ग्रुप ट्रैवल करवा रहे हैं। यानी ये बड़ी एक रहमत है हमारे ऊपर कि कितने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग हमारे मुल्क के, लीडर्स हमारे मुल्क के, वो अवाम को एक बहुत इकोनॉमिकल पैकेज में दुनिया घुमा रहे हैं। इससे बड़ी नेमत क्या होगी? इसको नेमत समझें और अच्छे अच्छे उस्ताद तलाश करें, और उनके साथ देखिए, इस तरह के जो मेंटोर हैं, इनका अगर साथ हमें अगर ट्रैवल में मिल जाए तो इससे अच्छी तो कोई, जैसे ट्रैवल तो खुद ही एक उस्ताद का दर्जा रखता है ना, सफर वसीला है जफर। लेकिन अगर उसमें हमें उस्ताद मिल जाए, कासिम अली शाह साहब जैसे और जावेद चौधरी साहब जैसे, और हमारे जो वो डॉक्टर साहब हैं वो भी लेके जा रहे हैं, और अब्बास साहब हैं हमारे दोस्त, वो भी लेके, तो नथिंग लाइक इट। आई मीन, हमें तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए और इनसे राब्ते में रह के अपने नेक्स्ट टूर को, नेक्स्ट विजिट को प्लान करना चाहिए। तो ट्रैवलिंग और लोगों का बाहर जाना, स्टूडेंट्स का बाहर जाना, ये बहुत जरूरी है। यानी अब आप सोचें, अगर आप बाहर जाके कोई क्वालिफिकेशन ले लेते हैं तो आप इंटरनेशनली एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। बहुत कम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं जो जिनको बाहर वो प्रेस्टीज हासिल है जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को। इसलिए हमारे बच्चे बहुत ज्यादा दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, या यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, फिर वो दुनिया भर में एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, उनकी कहीं पे भी उनको जॉब्स मिल जाती हैं अगर वो जॉब करें। और स्किल भी अगर सीखना है, देखिए आईटी को ले लें, अब आईटी में हम अभी 2-3 अरब डॉलर तक पहुंचे एक्सपोर्ट में, और इंडिया 100 के करीब पहुंच गया, $100 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है वो, और हम अभी इतने पीछे। तो यानी बच्चों को हम जब तक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देंगे,
उन्हें पता नहीं चलेगा। हमारे बच्चे जब तक सिलिकॉन वैली नहीं जाएंगे, उनको स्टार्टअप की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो हमारे बड़े तो जाते हैं, सियासतदान जाते हैं, दुनिया घूमते हैं, तो मगर हमारे बच्चों को भी जाना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है 7 लाख लोग गए, और मेरी दुआ है कि अब मजीद 70 लाख लोग जाएं बाहर और दुनिया घूमें। दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है। देखें, हमारे जो मुल्क में टैलेंट है ना, वो इतना आम नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं। वहाँ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। हम जितने कम वसाइल से जो प्रोड्यूस कर देते हैं, ये मुआवजा है ना। ये इसलिए कि हमारी माएँ घरों में हैं। हमारे अक्सर बच्चों को घरों में माएँ मिलती हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से वो इतने ज़हीन है। हमें तो रिसोर्सेस चाहिए, हमें तो गाइड्स चाहिए। बाहर बहुत गाइड्स हैं, मगर वहां लोग ही कम है। तो हमारे लोग अगर बाहर जा रहे हैं, तो ये आई थिंक ये बहुत अच्छा है, और हमें इसको इनकरेज करना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए। अब मैं दुबई में कुछ अरसे रहा, तो वहां मैंने नोट किया कि पाकिस्तानी बहुत कम है वहां पे। जितना पोटेंशियल है हमारा, वजह ये कि हम बताते ही नहीं है किसी को कि वहां कितना आसान है जाना। अब दुबई में स्कूल टीचर को ले लें, आप सिर्फ एक प्रोफेशन को ले लें, उनकी सैलरी कम से कम 10 से 20 हजार दरहम है, या 8 से 20 हजार दरहम अच्छे स्कूल टीचर को। अब आप पाकिस्तान में ले लें कितनी सैलरीज है। तो हम सिर्फ एक साल जो हमारे स्कूल टीचर हजरात हैं, बहुत है हमारे यहाँ, तो कहते हैं जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है, वो टीचर और टीचर, और बड़े हमारे नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। आप सिर्फ एक साल फोकस करें कि मुझे दुबई के एक स्कूल में, कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ दें, वो उनकी तो सैलरीज हजारों में, लाखों में, यानी 25-30 हजार दरहम से ज्यादा ही है। जो स्कूल टीचर हैं उसकी जॉब लेनी है। देखिए, जॉब मिल गई ना यूएई में आपको, तो फिर रहना वहना सब कुछ उसमें आ जाता है, वीजा, गाड़ी, घर सब हो जाता है। जॉब चाहिए असल आपको। तो पाकिस्तानी जाते ही नहीं उसके में, उनको पता ही नहीं है कि दुबई में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो फोकस करें कि बाहर निकलें, देखें। जर्मनी में देखें ना, अभी डॉक्टरों ने, इंजीनियर्स ने हड़ताल कर दी। जर्मनी में इंजीनियर्स ने हड़ताल कर दी। वो कहते हैं भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, टीचरों को बहुत पैसे दे रहे हैं। तो उनकी जो चांसलर हैं, उन्होंने यही कहा कि भाई आप टीचर बन जाए। तो यानी इतनी टीचर की वैल्यू है जर्मनी में। उन्होंने कहा कि भाई टीचर थी तो आप इंजीनियर बने ना। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये कोई ड्रीम नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो आप जब तक निकलेंगे नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रैवल करें, देखें, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हैं, और आप का विजन बहुत ब्रॉड होगा, और बहुत ज्यादा आप मैच्योरिटी फील करेंगे, और दुनिया और आखिरत की कामयाबी आसान हो जाएगी आपके लिए हासिल करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।